Good morning, class 10th. Now again, welcome. In last video, I have given you one question to find out which of the material having high resistance. So I hope, and lots of those students have got the answer A or B, whatever they have got. So let's find out the answer and find out the correct answer. The graph is given between the I and B. and A and B. तो we have to find out the answer. हम कौन सा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे, करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR। तो फाइंड आउट द आंसर, तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ में से किसी एक वैल्यू को, यहाँ पे देखिए, यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ 0 होगा, और बेसिक बात यहाँ 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर जो वैल्यूज होंगी इंक्रीज करती जाएंगी, और यहाँ पे सेमली 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू इंक्रीज करती जाएंगी। हम वेदर आई को या वेदर वी को किसी एक वैल्यू को कर देंगे क्या, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, इस वैल्यू फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे जिस पॉइंट पे वो वी को इंटरसेक्ट कर रहा है, आई पे इसकी क्या वैल्यू शो करती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे ए का कहाँ पे है, यहाँ पे है, और सेकेंड पॉइंट कहाँ पे है। तो वी विल डिफाइन इट एज अ नोटेशन, लेट्स दिस वैल्यू विल बी आई ए फॉर मटेरियल ए एंड दिस इज वैल्यू इज फॉर आई बी, मटेरियल बी। नाउ व्हाट, now we will look at the formula V equals to IR and we have made V as a constant. So we can write that the I constant, for example, constant is equals to IR, or I is equals to constant upon R, is correct. And we have know that when we remove the constant, the proportional sign will be appear 1 upon R. That we have find out that between I and R there is a inversely proportional relation, यानी I और R के बीच में inverse proportional का relation है। तो चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे R equals to R proportional to 1 upon I. So from this formula, what I will get, if the value of I will be increase, then what? The value of R should be decrease. If the value of I will be decrease, then the value of R should be increase. यही होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ, हम ग्राफ से क्या देखेंगे, किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, किसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं द आई ए एंड आई बी। ऑब्वियसली यहाँ कहीं 0 है, फिर यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, यहाँ 4 इंक्रीज करता जाएगा। It means what? From looking at the graph, we can find out easily the value of IB is greater than the value of IA. Now looking into the formula, what we have derived, what? If the value of I will be increase, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, RA and RB। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, RA की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। IB have the higher value than the IA, so from this we will got the RA has higher resistance than the RB. So the material A have the higher resistance. Correct answer, जिसको A मिल गया है, very good. The material A has the higher resistance. We have got the answer. Now coming to the next topic, which is very simple in your textbook, you can find out in the NCERT or whatever. If now we have from class 8, बचपन से ही हम लोग पता चले आ रहे हैं कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। तो बेसिकली हम किसी कोई भी पूछता है, आस्क्स द व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर, वी सिंपली से द एनी मटेरियल व्हिच अलाउ द करंट पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। इफ एनीवन विल आस्क विद से to define the conductor in the terms of resistance, so we can easily say that any material which have low resistance, any material which have low resistance are known as conductor, and any material which has more resistance
is known as insulator. Because in last video हम पढ़ चुके हैं क्या resistance क्या होता है. It is a property of any material which oppose the flow of current. Flow of current means what? The flow of electrons. इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है. तो जो कम अपोज करेगा तो वहाँ करंट इजिली फ्लो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर. और जो ज़्यादा अपोज करेगा तो वो क्या जाएगा, इंसुलेटर. Is it clear? So, moving to the next topic, which is given on the textbook. Factors affecting the resistance. विच फैक्टर्स, मतलब किस किस फैक्टर्स से हम रेजिस्टेंस को किस अफेक्ट पड़ता है या इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि दो पेन ले लेते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हम पढ़ाई करते हैं क्लासेस में वैसे ही पढ़ाई करेंगे. दो पेन लेते हैं. एक मटेरियल, ये दोनों कंडक्टर है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है. अब दोनों में क्या फ़र्क है. अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इस वाले में कि इस वाले में, तो हम क्या देख क्या रहे हैं कि इन चारों पर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो दोनों में डिफरेंस है. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ. इसकी लेंथ बहुत हाई है, इसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल है. सेकेंड, हम क्या देख सकते हैं कि इसका एरिया कुछ डिफरेंट है, इसका एरिया कुछ और डिफरेंट है. सेकेंड, और क्या फैक्टर्स कर सकता है, मटेरियल, ये किसी और मटेरियल से बना होगा, ये किसी और मटेरियल से बना हुआ है. एंड लास्ट, तो इसके फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है वो क्या है, टेम्परेचर. इसके अगर हीट जो करंट प्रोवाइड कराएंगे यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, इसका टेम्परेचर कुछ और राइज करेगा, इसका टेम्परेचर कुछ और राइज करेगा. इन शॉर्ट, we can find out the 4 factors can affect the resistance, which कौन कौन से होंगे, लेंथ, एरिया and nature of material and what, last, temperature. So we will discuss one by one. The first one is effect of length. Effect of length. So basically, through experiment, our scientists, very many researchers have researched and find out कि इसे हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करें. इसमें हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 2 सर्किट लेंगे, एक तरफ एक बैटरी लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव. इस बात को ध्यान रखिएगा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है. एक एमीटर लगाते हैं, एक एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव. और क्लास में हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि पॉजिटिव एमीटर सीरीज में क्यों होता है, वुड में पैरेलल क्यों होता है. यहाँ लगा देंगे रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे. और यहाँ क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर. और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव. और यहाँ हम आगे क्या लगा देंगे, यह हमारी प्लग की और वॉट एवर यू हैव चूजन. सिंबल्स क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, ये हमारी क्या है, की. अब हमको क्या करना है कि 2 मटेरियल हमारे पास है, एक दिस वन एंड दिस वन. तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ये लिया, एक रेजिस्टेंस और बगल में लिया, और दोनों, ये एक वायर है, ये कंडक्टर एक वायर है. ठीक है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस पॉइंट पे. ठीक है, एक को यहाँ पर, एक यहाँ पे. व्हेन वी इंक्रीज, जब हमने इस दोनों में वैल्यू को सेम रखा, करंट की वैल्यू को सेम रखा, वोल्टेज को सेम रखा, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हम जब हमने वोल्टेज किसी पे वोल्टेज को इंक्रीज किया, सॉरी किसी की वोल्टेज को इंक्रीज किया. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें करंट कम फ्लो कर रहा है. ठीक है, इसमें करंट क्या कर रहा है, कम फ्लो कर रहा है. और इस वाले में क्या है, करंट इजीली फ्लो कर जा रहा है. इसकी आर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसकी आर की वैल्यू कम आ रही है. तो फ्रॉम दिस साइंटिस्ट रिसर्च किया और क्या फाइंड आउट किए कि if not, I cannot say if, we have experimentally proved that the factors talking about the length, right, कि R is proportional to L. एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको ये फाइंड आउट हुआ कि R क्या L के प्रोपोर्शनल है, यानी जिस भी मटेरियल की लेंथ हाई होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगी, हाई होगी. फिर सुन लीजिए, जिस भी मटेरियल की लेंथ लॉन्ग होगी या हाई मोर होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मोर होगा. तो R इज प्रोपोर्शनल टू L. सिंपल टॉपिक है. सेकेंड क्या है, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक, आफ्टर doing the experiment, we have find out
the resistance of any material is inversely proportional to the area of cross sections. It means what कि जिस भी मटेरियल की एरिया स्मॉल होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी हाई. क्लियर है चीज़. तो थोड़ी ये सब थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है. अभी मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था. ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटल है. ये एक्सपेरिमेंट करके हमको ये फाइंड आउट किया गया कि किसी भी आर और ए में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. क्लियर है. चलिए, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है. और थर्ड हमारा क्या है, लास्ट थर्ड है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Effect of temperature. It is also found that if we use the pure metal, if we use the pure metal as a resistance of the conductor resistance, तो by increasing the temperature, pure metal की बात हो रही है यहाँ पे. Pure metal में if we increase the temperature, then resistance will also be increase. कि किसी भी अगर प्योर मेटल में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली इफ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. एंड द लास्ट वन इज विच इज वॉट नेचर ऑफ द मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल से हमको ये फाइंड आउट क्या हो रहा है कि अलग अलग मटेरियल, अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस होती है. तो कोई फिक्स नहीं है कि इस मटेरियल का लेंगे, तो डिपेंड करता है इसके नेचर की क्वालिटी पे, कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगी कि लो होगी. हाँ देखिए, रेजिस्टेंस की यहाँ तक बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है. मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंस है कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मैं 2 पेन लेता हूँ, ठीक है, सेम मटेरियल लेता हूँ, अलग मटेरियल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सेम ही मटेरियल का है, ठीक है. तो अगर इसकी दोनों की लेंथ फिक्स है, दोनों की लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है और मटेरियल फिक्स है, तो इट मीन्स इन दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा. ये एकदम क्लियर है, ठीक है. मगर सेम मटेरियल है, सेम एरिया है, बट इसकी लेंथ हाई कर देता हूँ, तो इसकी लेंथ में अगर हाई कर देता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना. तो इसी फैक्टर को नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा. वो क्या है, रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी क्या आता है, आफ्टर लर्निंग दिस ऑल फैक्टर्स, ठीक है, आफ्टर ये इस सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमको क्या रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन किया गया कि हम लोग को क्या मिला. पहला पॉइंट इससे, इस सारी चीज़ें से क्या मिली कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L. सेकेंड, R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. तो हम लोगों ने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया. तो वी व्हाट विल बी गॉट, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे. हम लोग बार बार पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे. तो प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करेंगे विल बी गॉट द कांस्टेंट दैट इज रो L/A. मैं लिख देता हूँ इसको, क्या रिगार्ड करेंगे, रो RHO. तो वी गॉट दिस फॉर्मूला एंड अभी आप डिफाइन कर देते हैं. अगर रो की वैल्यू निकालनी होगी तो रो का हो जाएगा R, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा R इंटू A/L, RA/L, वेयर रो क्या है, रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं. इफ एनी मटेरियल, लिसन केयरफुली, इफ एनी मटेरियल हैविंग, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा. इफ एनी मटेरियल हैविंग लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of 1 meter square, then resistivity will be equal to the resistance of the material. क्लियर हो गया. ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा सिमिलैरिटीज है, ध्यान समझिएगा
if any material having length of 1 meter and area of cross section 1 meter square, then resistivity will be equal to the resistance of a material. Clear हो रहा है? चलिए ठीक है. Now one thing very important from here. जब इसको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 10 ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को. ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. इसकी निकालनी क्या है हमको यूनिट, ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी. लुक एट दिस फॉर्मूला. व्हाट वी हैव फॉर्मूला, रेसिस्टिव इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल. आर इंटू ए अपॉन एल. तो हम यूनिट रखेंगे तो आर क्या है रेसिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है ओ. इस देखिए मैंने पिछली क्लास में भी ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि आर ये क्या रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है. किसी उसकी कोई यूनिट नहीं होती. कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ग्रुप में कि सर ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, और ये क्या है इसका सिंबल. क्लियर हो गया. ये क्या है एरिया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और ये क्या है लेंथ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर. तो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या बच गई ओम मीटर. तो ये इसकी क्या है एस आई यूनिट. तो द एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टिव विल बी द ओम्स मीटर. और ओम किसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, हम क्लास डिस्कस कर चुके हैं. तो ये इतने क्वेश्चन शॉर्ट में 1 मार्क्स कभी कभार पूछ भी लेता है, तो डिराइव करने के लिए. तो इसको भी ध्यान से रखिए कैसे इसको डिराइव करना. तो वन थिंग मोर कि रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. जो रेसिस्टिविटी होती है, ये देखिए आज एनसीईआरटी वगैरह में शायद नहीं मिलेगा. तो रेसिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल के लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो उसकी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है. तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ रेसिस्टिविटी के आपके बुक में कुछ टेबल्स वगैरह होंगे तो उसको भी डिफाइन कर देंगे, या उसको भी डिफाइन क्या कर देंगे उसको भी आपको मैं दे दूंगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा. जैसे सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम मीटर. ये -4 दिया हुआ यानी ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो रेसिस्टिविटी क्या है बहुत कम. अब अगर हम बात करते हैं बेस्ट की तो और क्या हो जाएगी इगोनॉइड रॉड. इगोनॉइड रॉड को हम पढ़ चुके हैं, उसके रेजिस्टेंस क्या होता है काफ़ी हाई होता है. और इन दोनों में बात करें तो मैग्नीशियम हो जाएगा. तो इसकी मैं एक फ़ोटोज़ आपको सेंड कर दूंगा, तो उसको आप रीड आउट कर सकते हैं, इसको रीड आउट कर लीजिएगा. इस पर देखिए बेसिकली और क्वेश्चंस भी आते हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि वाई वी यूज़ अलॉय एट अ प्योर मेटल इन प्लेस ऑफ प्योर मेटल फॉर हीटिंग डिवाइस. ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. और आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि फाइंड आउट, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क रहेगा, इसको फाइंड आउट करिएगा. फाइंड आउट why we use alloy for heating device. ठीक है, ये आपको होमवर्क है, इसको आप यहाँ से देख लीजिए. फाइंड आउट वाई वी यूज alloy फॉर हीटिंग डिवाइस, ये आपको होमवर्क है, इसको फाइंड आउट कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो इसको डिस्कस डेफिनेटली करेंगे. थैंक यू क्लास.